Yes, namaste. Good afternoon, friends. This is Dr. Jyoti Joshi, live from Joshi Panchakarma Clinic, Panvel. So basically, yes, I'm into the treatment room and I'm with my, one of the favorite procedure, that is, the leech therapy. So काफी बार ऐसी चीजें होती है जहाँ पे, मतलब we can say there is no diagnosis many a times from allopathy perspective. काफी बार diagnosis missing होता है, symptomatic treatment दी जाती है. So ऐसे सारे cases में what is the role of आयुर्वेद, हम आयुर्वेद से क्या कर सकते हैं. और काफी बार ऐसे होता है कि मतलब I don't believe कि 20s या 25 में you should take any sort of medicine, though it's आयुर्वेद, though it's allopathy. I really don't believe in that. So many a times I believe कि मैं local कुछ treatment करूँ and patient should be all right. So when the patient came, the patient had basically a severe back pain. काफी ज़्यादा back pain था. X-ray and all sort of investigations were there, and definitely they just give some sort of multivitamin and other thing. I just stopped everything and I did local treatment. Last, I think so, afternoon OPD was little bit busy, and thereafter I had my own commitments, so I was not able to do live video. But today I think so you are able to understand what sort of treatment I'm talking. So it is a leech therapy. So I just applied one small single leech, and what magic that leech can do. I'm literally using, being a medical profession, I'm using the word magic because Ayurveda definitely can do a quick treatment, and many a times it is not at all acceptable by so many people क्योंकि उन्होंने कभी शास्त्रीय आयुर्वेद देखा ही नहीं है. They have not witnessed कि आयुर्वेद की रियल ताकत क्या है. So these are the treatment. So yes, Dr. Amita, I'm going to show you. So let us see what sort of treatment basically I did. Yes, so basically you can see here. Yes, so this is the leech. ये लीच लगाने का कितना फोबिया था आपको? ना विल लिसन फ्रॉम द पेशेंट. क्या कितना फोबिया था लीच लगाने का? बहुत ज्यादा, बहुत पैनिक हो रही थी मैं. ओके, और अभी लीच लगाने के बाद वो फोबिया कितना कम हो गया? बहुत कम, 0%. क्या बोलोगे लीच ट्रीटमेंट, जिन्होंने आज तक कभी किया नहीं है, तो क्या बोलोगे लीच ट्रीटमेंट के बारे में? काफ़ी अच्छा लग रहा है. मुझे बहुत पेन हो रहा था चेस्ट के आते, स्वेलिंग हो गई थी थोड़ी. जैसे ही किया वैसे पेन काफ़ी रिलीफ लग रहा है. सो आई विल डेफिनेटली रिकमेंड. एंड व्हाट अबाउट योर बैक पेन? बैक पेन भी कल से काफ़ी बेटर है. कल लेफ्ट साइड पूरा ही पेन कर रहा था, बट आज काफ़ी बेटर है. ओवरऑल 24 आवर्स में आयुर्वेद कुछ कर सकता है? Yes, definitely. You are suffering with a lot of symptoms. So वो symptoms कितनी देर में after starting Ayurved it is subsided? Almost in 24 hours it subsided. And before that, for how many days you have taken the, consulted different, the physician? 4-5 days. Yes. Yes, so definitely you can see the leech therapy. इसका पेन होता है, ये चुभता है, ये काटता है थोड़ा सा स्टार्टिंग में. कितना परसेंटेज होता है? कैसे एग्जांपल दोगे? वेरी माइनर, जैसा इंजेक्शन चुभता है उससे भी कम चुभता है, बट देन नॉर्मल हो जाता है. और ये लगाने के बाद साइकोलॉजिकली कैसे लगता है? काफ़ी फ्रेश लग रहा है. Yes, so basically you can see the leech therapy. So it has a huge benefits. काफ़ी underrated ये treatment हो जाती है many a times, but ये इसीलिए मैंने live video किया कि many patient they love to do it. काफ़ी लोग जिन्होंने करवाई है, they are very fond of this treatment, for rather than taking any internal medication and other stuff, they feel that this is the safest and the most fastest way of the healing from psychological perspective रहो या emotional रहो या physical रहो, with the so many perspectives. So definitely रक्त मोक्षण के बहुत सारे टाइप है. It is one of the पंचकर्मा treatment. So पंचकर्मा treatment में भी सब टाइप्स है, और वो सब टाइप्स क्या है ये बताने की मैंने
मैंने बहुत बार कोशिश की है, काफ़ी बार हम वेनस पंक्चर करते हैं, उसके बाद में काफ़ी बार हम सीरा वेद कर देते हैं, उसके बाद में काफ़ी बार सीरा वेद के भी वीडियो, काफ़ी बार जो ट्रीटमेंट होती है वो सोशल मीडिया पे, बिकॉज इफ इट इज़ रिलेटेड टू ब्लड एंड ऑल, सो मेरे को बहुत रेस्ट्रिक्शंस आ जाता है उसके बारे में बोलने में. बट आई वुड रियली लव दैट मतलब अभी जैसे ट्रीटमेंट हुआ, समवेयर पेशेंट विल रीड अबाउट इट, दे विल हैव लिटिल बिट आइडिया अबाउट द दिस ट्रीटमेंट कि इंडियन ओरिजिन हो के भी अगर आप गूगल पे ये सारे ट्रीटमेंट के बारे में देखोगे, सो इवन पेशेंट टोल्ड मी कि इट इज फेमस इन द जर्मनी. सो जर्मनी इंडियन ओरिजिन है, येस, बट स्टिल इट इज फेमस इन जर्मनी. सो वो लोग आके हमें सिखा है कि ये ट्रीटमेंट्स है एंड इट इज बेनिफिशियल. उससे अच्छा हम ही समझे, हम ही हमारी जनरेशन को सिखाए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट वी हैव विच कैन गिव अ इंस्टेंट रिजल्ट एंड विच आर very very beneficial, especially in the cases where we need a complete holistic healing, a holistic approach is needed. There definitely we can use this sort of treatment, and definitely there will not be need of any further medication, you know, not allopathy, not Ayurveda, nothing. There will not be need of any medication. So adopt all this treatment, and this is, I think, so moral responsibility of the Vaidyas to propagate the Ayurveda, and it's a Shastri Ayurveda की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसीलिए in between busy OPD I make sure that at least whenever it is possible I will speak, and many a times I don't believe, because I don't do it for the advertisement of the clinic and all. I just do that many Ayurveda student can get the confidence of Ayurveda practice, क्योंकि काफ़ी लोग you know they can talk verbally about the Ayurveda, काफ़ी लोगों के श्लोक लर्न होते हैं, but when it comes to the clinical you know practice, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी लोग मतलब बहुत पीछे हट जाते हैं. तो वो चीज़ है, वी शुड बी बेस्ट इन एकेडमिक्स, वी शुड बी बेस्ट इन द क्लिनिकल पार्ट, वी शुड बी बेस्ट इन यू नो रिसर्च, देन ओनली वी विल एबल टू स्टैंड द ग्लोबली ऑन द आयुर्वेद प्लेटफॉर्म, एंड दैट इज द नीड ऑफ अवर. सो जो रिसर्च वर्क है, कहीं ना कहीं एलोपैथी रिसर्च वर्क से उसको कंबाइन करना काफ़ी बार नहीं सही होता है, बट स्टिल मतलब रिसर्च के द्वारा जो भी हम प्रूव कर सकते हैं तो वो भी ज़रूरत है. सो आई विल एनकरेज ऑल माई कलीग्स एंड द स्टूडेंट दैट speak about your clinical cases, speak about the Shastri Ayurveda. That's the need of our. अगर हम वो अपना ज्ञान अपने तक ही रखेंगे, आई एम सो हैप्पी दैट काफ़ी लोग यूट्यूब पे जो एकेडमिकली हो, जो संहितोक्त आयुर्वेद है वो सिखाते हैं, उनके लेक्चर्स रहते हैं, बट क्लिनिकल आयुर्वेद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हम जब तक, बिकॉज दिस इज द मेडिकल साइंस, दिस इज द हीलिंग प्रोसीजर, सो डेफिनेटली हम जो कर रहे हैं ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होना और उसका रिजल्ट पेशेंट के सामने दिखाना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. सो डू प्रैक्टिस आयुर्वेद एंड प्रोपोगेट आयुर्वेद. सो इसी के साथ आई विल कंक्लूड. प्लीज डू टेक केयर. नमस्ते. अपना ध्यान रखिए, अपने नियर एंड डियर वंस का ध्यान रखिए. नमस्ते.